Good morning, children. So we are in revision lecture number 7 of new chapter, that is called chapter number 4. Movement towards new national movements in India. Now see, children, as we have studied this lecture in 5 different topics. Previously, when I taught you this lesson, right? When I taught you this lesson, it was lecture number 38, 39, 40, 41 and 42. Each and everything was briefly discussed in this topic. So, once again, we cannot afford to go in that 5 lectures further, but within 2 or 3 lectures, we will once again recreate the whole system. First of all, let me say, first of all, let me say, this lesson is having a content from 1926 to 1947, if I am not wrong. Sorry, it is not 1925. It is from 1900 to 1925, 26. Approximate 25 years. Achha, what happened in this 25 years is my topic. Okay? We are supposed to study the events which took place from 1900 to 1925 in this 25 years of this lesson. Achha, directly we will start with first event. That is 1905 division of Bengal. Division of Bengal. This is the first event which took place. Now, as I told you, children, okay, Bengal has burned the maximum heat of British exploitation. Right? Because see, as you studied the Battle of Plassey, in initial lecture I made you to study. After Battle of Buxar, British established a foothold in India. Then successive viceroy came to India, and finally they looted India. But the maximum heat was borne by Bengal. सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटिश ने बंगाल में किया था. सबसे ज्यादा लूटपाट, उथल-पाथल मचा रखी थी बिहार, बंगाल, उड़ीसा प्रोविंस में. इसीलिए आपने पढ़ा है कि आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, when Renaissance started in India, new awakening, the torchbearer of Renaissance was from Bengal. That is Raja Ram Mohan Roy. Even today, which we call a grand old party, political party, Communist Party, it was established in Bengal in 1887 by English supporter A.O. Young, Allen Young rather. Number of freedom fighters came from Bengal, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो या रोमेश चंद्र बैनर्जी हो या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कौन नहीं जानता. सबसे अहम नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और सबसे खतरनाक नाम सुभाष चंद्र बोस. They all came from Bengal. क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रिटिश का अत्याचार, ब्रिटिश की लूटपाट बंगाल में सही थी. And so Bengal became the epicenter of national movement. एपिसेंटर बन गया था. इसीलिए ब्रिटिश को ऐसा लगा कि ये तो कभी कैसे बंद ही होनी चाहिए.
अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ, उस वक्त हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो हमारे दिन हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा। वी हैव टू लिव इंडिया। और उन लोग पास वो तो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो उसका इस्तेमाल करके 1905 में कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दिस वाज इंटेंशनली प्लान्ड बिकॉज एट दैट टाइम होल बंगाल, ईस्ट बंगाल had Muslim majority and Hindu minority, while West Bengal, today's Bengal, आज का Bengal, had Hindu majority and Muslim minority. अगर दो भाग कर दो, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल करके, ईस्ट बंगाल आज का बांग्लादेश बोला जाता है, वेस्ट बंगाल आज का बंगाल बोला जाता है। अगर इधर दो बंटवारे किए और ब्रिटिश के चमचे तो उधर भी मौजूद ही थे, डजन के हिसाब से अभिचंद जयचंद मौजूद थे, अगर इधर कुछ ऐसा हुआ कम्युनल अफेयर की वजह से, हिंदू मुस्लिम की है, अगर इधर कुछ हुआ तो इसकी जो आग है वो पूरे हिंदुस्तान में फैल सकती है। अगर ये हुआ तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी ब्रेक हो जाएगी, और अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी ब्रेक हुई तो आजादी की जंग खत्म हो जाएगी। इतना घटिया प्लान लेके, इतनी घटिया सोच डेवलप करके कर्जन हिंदुस्तान आया था 1905 में, एंड कमिंग टू इंडिया he implemented his wicked plan of dividing Bengal. अच्छा, रीजन क्या दिया था? Bengal is a huge province. We want to go for smooth administration. इतने बड़े province में हम administration में पहुंच नहीं सकते। तो भैया मेरा एक सीधा साधा सवाल है, इतने साल तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच सकते थे, अभी अचानक ऐसी कौन सी घटना हुई तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच नहीं सकते हो? और आप काहे का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो? कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हो? क्या रिफॉर्मेशन लाएगा आप हिंदुस्तान में? लूटपाट कैसे करो? प्लानिंग अलग था, भाषा अलग थी, इंटेंशन अलग था। तीन में से कोई भी एक चीज में तालमेल नहीं होता था, और इसकी वजह से बंगाल का बंटवारा बॉयकॉट ऑफ इंडिजिनियस मूवमेंट, बंगाल का बंटवारा हुआ और हमारे देश में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई। स्वदेशी मूवमेंट शुरू करवाने वाले थे हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, कि उसने अगर बंगाल को डिवाइड किया है, दे आर डिवाइडिंग अस फिजिकली, दे कैन नॉट डिवाइड आवर हार्ट्स। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को नहीं तोड़ सकते, इसीलिए हम उसके गुड्स का बहिष्कार करते हैं, बॉयकॉट करते हैं। जैसे अब माहौल बन गया है चाइना के लिए, इंडिया में कैसे चाइनीज गुड का बहिष्कार होता है, वैसे उस वक्त ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार होना शुरू हो गया, क्योंकि आपने हमारा बंगाल को डिवाइड किया, हम आपको व्यापार धंधे में उसका जवाब देंगे। एंड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। सो division of Bengal was responsible for starting off Swadeshi movement. Swadeshi movement. Right? उसके बीच में establishment of Muslim League. Establishment of Muslim League. 1906 and unification of Bengal. Unification of Bengal. 1911. ये चार घटना आपस में जुड़ी हुई है। ये घटना हुई थी 1905 में, बंगाल वापस जुड़ गया 1911। लेकिन ये 5 साल में दो ऐसी घटनाएं हुई जो एक हमको आत्मनिर्भर भारत की तरफ खींच गई उस वक्त का, और एक घटना जो ये हुई जिसमें पाकिस्तान का जन्म हुआ।
historians say officially India and Pakistan was partitioned in 1947. You have studied that. क्या बंटवारा कब हुआ था? 1947 में. But it is not true. पाकिस्तान का जन्म 1906 में हो गया. ऑफिशियल डिक्लेरेशन 47 में हुआ. इसको कि जो मुस्लिम लीग है वो जो एस्टैब्लिश हुई, और इस ये एस्टैब्लिश होने के बाद ये ब्रिटिश शासन की बिल्कुल पिट्ठू थी. आप इतिहास पढ़ लो, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, बरकत अली, सबका नाम पढ़ लो. किसी ने भी 1947 तक, 1906 से 47 तकरीबन 4 डिकेड, कोई भी आजादी की जंग में अपना हिस्सा नहीं लिया है. 4 डिकेड में, एस्टैब्लिशमेंट से लेके 1947 तक, बंटवारे तक, you will never ever study a line. कई सारी जंग हुई. लास्ट जंग हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट. आप कहीं भी पढ़ लो, you will never find a line mentioning Muslim League supporting this event. चाहे वो बारडोली सत्याग्रह हो, चाहे वो दांडी यात्रा हो, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, या स्वदेशी आजाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो, या लास्ट मूवमेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. कहीं भी उसका हिस्सा नहीं था, क्योंकि ये ब्रिटिश का मानसिक चाहे था. ये ब्रिटिश की एक सब्सिडरी आर्मी थी जिसका काम था हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करना, और आजादी की जंग जो चलती थी उसको पटरी से उतारने का. हाँ, एक बार वर्ल्ड वॉर 2 की तहत एक बार इन लोगों ने मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश की, कांग्रेस के नजदीक आने की कोशिश की. और आपको मालूम है गांधी जी तो बड़े दिल वाले थे, सबको माफ करने में तुले हुए थे. तो गांधी जी ने उसको वेलकम किया 1918 में कि चलो कोई बात नहीं, हमारा एक बात है, रास्ता भूल गया था, वापिस आना चाहता है, हम उसको मदद करेंगे. गांधी जी ने कांग्रेस के जरिए उसकी मदद भी की टर्की के इश्यू में. वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सा इश्यू था. लेकिन वो बात जब खत्म हुई तब उसने अपना ओरिजिनल कलर निकाला, एंड दे मेड अ डिस्टेंस. तब से लेके 1947 तक कभी भी कोई भी इंसिडेंट में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेशन किया नहीं है. Understood? So this is the whole series of 5 division of Bengal, स्वदेशी मूवमेंट. इसका जवाब इससे मिला, बीच में एक दुर्घटना हो गई और वापस बंगाल यूनिफाई हो गया. This was the first moral victory of Indians. हमारी पहली जीत थी विदेशी ताकतों के सामने. जिस बंगाल को डिवाइड किया, उसी बंगाल को 5 साल के बाद यूनिफाई करना पड़ा. लेकिन बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी. वो हमारी पहली जीत थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ. लेकिन बीच में जो ये दुर्घटना हो गई, मैं वापस बोलता हूं, दुर्घटना, ये दुर्घटना हो गई, इसलिए हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया. है समझ में? वरना इफ यू एलिमिनेट दिस इंसिडेंट तो बिल्कुल हमारी पहली जीत दर्ज की जाती. ऐसा समझ में? So let's start with our topic. Boycott and indigenous movement along with Bang Bhang movement. Division of Bengal means Bang Bhang movement was one of the most important events in Indian politics because of divide and rule policy as a result of British Machiavellian policies. Machiavellian means malicious policy, dirty policy, malign irade.
इंडिजिनियस मूवमेंट गॉट इंपॉर्टेंस। हम उसके इरादे पहचान गए थे, वो क्या शासन करना चाहते हैं मालूम था, कैसा शासन करना चाहते थे मालूम था। Bengal was a big province at the time of British rule, which included the present day Bihar, Bengal and Odisha। इतना बड़ा प्रोविंस था। बैटल ऑफ बक्सर के समय से ये प्रोविंस में ब्रिटिश ने उत्पात मचा रखा था, सबसे ज्यादा उत्पात उधर से हुए थे। समझ में आया? Compared to other states, Bengal was a center point of national awakening। क्यों सेंटर पॉइंट हुआ? क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रिटिश के अत्याचार ये प्रोविंस में सहे थे। आपने साइंस में पढ़ा ही है ना, एक्शंस एंड रिएक्शंस आर ऑपोजिट एंड इक्वल। जितनी जोर से आप दीवार पे बॉल पटकोगे उतनी फोर्स से वापस आएगा ना, वो तो बिल्कुल नेचुरल रूल है, राइट? द इंपॉर्टेंस ऑफ थॉट ऑफ नेशनल अवेकनिंग केम फ्रॉम बंगाल। उस वक्त बंगाल वॉज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल प्लेस इन इंडिया। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग उस वक्त बंगाल में थे। अवेकनिंग सबसे ज्यादा बंगाल में था। इसीलिए ब्रिटिश को तकलीफ होती थी कि अगर इन लोग का कुछ इलाज नहीं किया तो ज्यादा दिन हम हिंदुस्तान पे राज नहीं कर सकते, हिंदुस्तान गंवाने का समय आ जाएगा। ऐसा समझो। In 1857 revolt, Hindus and Muslims collectively fought against English. That is why the thought of English strategy divide and rule encouraged communism, which caused division of Bengal. क्योंकि बंगाल 1857 से एपिसेंटर रहा है, पर एक ही बात थी हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन की, क्योंकि पोलराइजेशन था। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे, हिंदू कम थे। वेस्ट बंगाल में हिंदू ज्यादा थे, मुस्लिम कम थे। ये पोलराइजेशन का ब्रिटिश ने पूरा फायदा उठाया। समझ में? वाइसरॉय कर्जन in 1905 divided vast Bengal province into East Bengal and West Bengal intentionally। लेक्चर नंबर 39 में मैंने सब लिख के आपको समझाया है। When he announced the division on 16th October 1905, the whole Bengal observed as a national mourning day, राष्ट्रीय शोक दिवस। Right? The same day, the announcement about boycotting all foreign goods and encouragement to use indigenous goods were made. Not only Bengali but other Indians also believed that the division had been not done to curtail the ferocious feeling of nationalism। पूरा हिंदुस्तान उस वक्त समझ चुका था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एक बहाना है, उसका मेन इरादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी तोड़ना है, कम्युनिज्म स्प्रेड करके, ताकि दो लोग की लड़ाई में हम तमाशा देखें और शांति से बैठे। लेकिन उसका वो इरादे सफल नहीं हुए। राइट? On that day, Hindus and Muslims tied Rakhi to each other in entire Bengal। 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया गया था, डिवीजन के वक्त। This movement had three major impacts: adoption, indigenous product, मतलब अभी जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, उस वक्त ये नारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, आत्मनिर्भर भारत। हम अपनी जरूरियात कम कर लेंगे लेकिन ब्रिटिश की कोई चीज नहीं लेंगे। बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स एंड एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन। अगर एजुकेशन आया तो हमारे राइट्स के बारे में अवेयर होंगे, वर्ल्ड की हिस्ट्री मालूम होगी, वर्ल्ड की फाइनेंशियल कंडीशन मालूम होगी, सोशल कंडीशन मालूम होगी, पॉलिटिकल कंडीशन मालूम होगी, और हम अपने हक के लिए लड़ सकते। सो एजुकेशन इज मस्ट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्वदेशी एजुकेशन, हिंदी, लोकल एजुकेशन। राइट? इंडिया benefited a lot due to Swadeshi movement, while the English industry was badly affected due to foreign boycott।
जब बंगाल का बंटवारा हुआ, हिस्ट्री में ऐसा बताया जाता है, बंगाल का जब बंटवारा हुआ था 1904 में, ब्रिटिश को हिंदुस्तान में से तकरीबन 1 लाख का धंधा मिला था बंगाल में से, सिर्फ बंगाल प्रोविंस में से। और बंटवारे के बाद 1907 में वो धंधा गिर के राउंड अबाउट 9700 तक आ गया। इतना रिड्यूस हो गया था, इंपोर्ट बंद हो गया था, स्वदेशी मूवमेंट का इम्पैक्ट था। सीरियस नोटिस वाज टेकन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट कि ये क्या हुआ, 2 साल में 1 लाख रुपए का धंधा था, अभी 10,000 का भी नहीं है, क्या है इसे? सो क्वीन ऑर्डर टू देयर कि ये सब बंद करो, नहीं चाहिए, धंधे में तो नुकसान चाहना ही नहीं चाहिए, बराबर है। एंड आफ्टर prolonged discussion and thinking, once again Bengal was unified in 1911। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट जोर शोर से एस्टैब्लिश हो चुका था। है समझ में? बिल्कुल पक्का हो गया ना? जैसे मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्यों देता हूं, ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाए, राइट? इंडिया benefited lot because of Swadeshi movement. While the English industry are badly affected due to boycott of foreign goods, the cloth coming from Manchester stock, sugar, shoes, cigarettes, tobaccos imported from England also reduced, and the sale of clothes made in India increased. Swadeshi movement एक vertical rise हो गया था, एक बाजू vertical fall हुआ और हमारा upliftment हुआ। ये ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी हार थी, पहली हार थी, राइट? The effect of the movement was felt in other provinces of India also। जो बंगाल में आग लगी थी ना, वो अभी पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी, स्वदेशी मूवमेंट। और उसके बाद गांधी जी पॉलिटिक्स में आए, उसने ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग किया, चरखा का मूवमेंट, राइट? That people from Punjab, UP, Madhya Pradesh, Mumbai, Madras, etc. beside Bengal adopted the Swadeshi movement. And in Gujarat also, the echo of the movement felt so strongly that the British Parliament within 6 years, that is called 1911, had to cancel the division of Bengal। तो ये हमारी पहली विक्ट्री थी। देखो बुक में लिखा है, दिस वाज द फर्स्ट मेमोरेबल विक्ट्री बाय इंडियंस। इट वाज द फर्स्ट मेमोरेबल विक्ट्री बाय इंडियंस। ये पहली हिंदुस्तानी जीत थी, ये पहली आजादी की जीत थी, मतलब मोमेंटम बन गया था, क्योंकि सब लोग जाग चुके थे उस वक्त। और ये बनने का दूसरा कारण क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेसन में पढ़ाया है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेलियर जो था। 57 में लोग अपने लिए लड़े थे, मैंने बार बार बताया था। ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग लड़त थी, ये बंगाल के लोगों की लड़त थी, इसीलिए जीत दर्ज हुई। इसमें कोई रॉयल मेंबर्स नहीं थे, इसमें कोई राजघराने के मेंबर्स नहीं थे, ये आम हिंदुस्तानी लोगों की, आपकी तरह मेरी तरह जो लोग थे उस वक्त, उसकी जीत थी। और 1857 में क्या था, सबको आपका अपना मतलब था। किसी को जगदीशपुर चाहिए था, किसी को कानपुर चाहिए था, किसी को झांसी चाहिए थी, किसी को ग्वालियर वापस चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए था। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि किसी राजा महाराजा को या कोई लीडर को हिंदुस्तान चाहिए था। कभी मैंने कभी मेरी कैरियर में लाइन नहीं पढ़ाई, इसीलिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल। ठीक है, उस वक्त प्रोडक्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पर लोग अपने मतलब के लिए लड़े थे। और इधर मतलब की जीत नहीं थी, इधर यूनिफिकेशन था,
इधर लोगों की जीत थी। है समझ में? सो इट गिव मोर इंपॉर्टेंस, राइट? तो ये बात हुई अभी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। बाय एडॉप्टिंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, द इंग्लिश वांटेड टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अपने पिट्ठुओं को तैयार किया, कोई तो चाहिए ना। और उस वक्त जो मुट्ठीभर नेता थे उसको ब्रिटिश ने हाथ में चांद दिखा दिया। कैसे? कि भाई हियर वी आर देयर टू बेनिफिट यू, हम आपके भले के लिए हिंदुस्तान में हैं। पूरी दुनिया में किसी का भला सपना में भी नहीं करने वाले लोग हिंदुस्तान की आवाम के लिए भला करेंगे। दूसरा, अगर हम इधर से चले जाएंगे तो ये तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन उस वक्त भी 80 to 83% हिंदू की पॉपुलेशन थी। तो आपका क्या होगा अगर आपको इधर से निकाला जाएगा? तो आप क्या करोगे? सो दिस नैरो थिंकिंग वाज implanted in the minds of handful of people। जो भाईचारा 1000 साल से हो रहा था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो रही थी, वो ब्रेक करने की बात थी। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि कई लोग ये बात में आ गए, अलग स्टेटस की डिमांड की, अलग राइट्स की लालच दी, सेपरेट वोटिंग राइट्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अभी कोई देश में हुआ है क्या? अलग कॉन्स्टिट्यूशन का लालच दिया गया कि आपके लिए कायदे कानून, अगर अब ये इधर है तो आपके लिए कायदे कानून अलग हो गए, हिंदुस्तान के लिए कायदे कानून अलग हो गए। तो ये जो रिफॉर्मेशन की बात हुई, जो हाथ में चांदा दिखाया, वो लोग उसकी बात में आ गए। लेकिन उसका आगे का प्लानिंग क्या था? दे वांटेड टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम रीडिंग एट प्रेजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड टेक्स्ट बुक। देन उस वक्त के हिंदुस्तान के लॉर्ड मिंटो और हिंदी वजीर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड इन इंडिया, मॉडले, together planned to crush the Indian national movement. When the national fight was becoming stronger, the English began to favor the upper class Muslims. मुट्ठीभर इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा दिखाना चाहते थे कि हम मुस्लिम्स के हमदर्द हैं। है समझ में? The English became successful in convincing a group of Muslims that they must form a Muslim organization to demand a separate voting rights and separate voting sectors. चाहे इलेक्शन आए तो हिंदू की लाइन अलग, मुस्लिम की लाइन अलग। कोई देश में ऐसा हुआ है क्या? आपको भी मालूम है ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन इसीलिए मैंने क्या बोला, हाथ में चांदा दिखाया था। छोटे बच्चे को भी मालूम होता है ऐसा कुछ नहीं होता कोई देश में। लेकिन ऐसा सपना दिखाया था हिंदुस्तानी आवाम कि भाई हम ये करेंगे अगर आप हमारी बात मानो तो। As a result, Muslim League was formed in 1906. Religious head of Muslim Aga Khan, Nawab of Dhaka, Salimullah Khan, Viceroy Minto, and Personal Minister Dunlop Speed played a very important role in establishment of this organization. Aga Khan को कन्विंस किया गया, ढाका के नवाब को कन्विंस किया गया। ब्रिटिश तो हाजिर पहले से ही थे और इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वो ऑर्गेनाइजेशन उसी दिन रखा जिस दिन कांग्रेस की मीटिंग थी ताकि मैक्सिमम मुस्लिम लोग इधर आए। जिस दिन कांग्रेस की मीटिंग थी कलकत्ता में, उसी दिन उसी तारीख को मुस्लिम लीग की भी मीटिंग रखी गई ताकि जो कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स थे, इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे, वो उधर ना जाए, इधर आए। लेकिन उसका प्लान फ्लॉप हो गया, फेल हुआ, राइट? ओके। In order to stop the Muslims from attending the conference of Congress, the annual conference of Muslim League was arranged on the same day as it was arranged on the day of Congress.
उसी समय उसी तारीख को मीटिंग रखी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान ये कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सके, राइट। थस अभी 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ने का। Thus, the demand of separate representation is not a brainchild of Muslims, but it is the part of English policy. अभी मैंने बोला ना, पाकिस्तान का जन्म 1947 में नहीं हुआ था, पाकिस्तान का जन्म हो गया था 1906 में, और यही मुस्लिम लीग ने आगे जाके बंटवारे की मांग की थी। है समझ में? मुस्लिम, yes, that is why many writers consider Minto as the father of Muslim communism. पाकिस्तान के क्रिएटर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, बरकतुल्लाह नहीं थे, उसका पहला क्रिएटर था मौलवी मिंटो। है समझ में? A historian also writes to the extent that the real creator of Pakistan is not Muhammad Ali Jinnah or Rahmatullah, but it was Minto. तो ये घटना जो हुई वो 5 साल की हुई, बात खत्म हो गई। अभी हम 1911 से आगे बढ़ेंगे, और 1911 से एक जात का भूचाल आ गया था आजादी की जंग में। अभी तक हमारी जो जंग थी वो मॉडरेट थी, मतलब एप्लीकेशन देना, रिस्पेक्ट करना, कायदे कानून से लड़ना। ब्रिटिश को यह सब भाग गया था, क्या करेंगे, रैली निकालेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, हमको जो करना है वही हम करेंगे। तो एक जो नया क्लास था, इंटेलेक्चुअल क्लास, फायरिंग क्लास जो यूथ का था, वो लोग इसके खिलाफ थे कि भाई ये सब नहीं चलेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा, बराबर। तो ये इंटेलेक्चुअल क्लास जो 1911 के बाद एक्टिव हुआ आजादी के लिए, जिन लोगों ने ब्रिटिश के लिए खौफ क्रिएट किया, वो थे रेडिकल नेशनलिस्ट। और उसके 3 हीरो आप पढ़ चुके हो, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उससे भी एक स्टेप आगे जाके एक नेशनलिज्म ऐसे यूथ में डेवलप थे जिसमें 18 to 22 इयर्स के यूथ शामिल थे। इसको एक पैशन था, जुनून था कि आजादी के लिए कुछ भी करेंगे, मरेंगे या मारेंगे, कुछ भी। They were not fearing death, and they were called extremists, right? They were called extremists, जिसको हम चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं, जिसको हम सुखदेव बोलते हैं, जिसको भगत सिंह बोलते हैं, right? So different people, different class of people thinking differently, fighting independence. Their goal was one: independence, भारत माता की आजादी। चाहे वो मॉडरेट तरीके से हो, एक्सट्रीमिज्म की तरीके हो, या एक्सट्रीम रेडिकल की तरह हो, इधर हमारा स्वराज चाहिए बस। वही एक मंशा दिमाग में घर कर गई थी कि भारत माता कैसे आजाद हो सके। है समझ में? So that is my new topic about the development of extreme revolution in India. Right? Let us see. I hope अपनी टेक्स्ट बुक शुरू ही रखने की है, राइट। Birth and development of extreme revolutionary movement in India.
So let us take all that things. The revolutionary activities in India was started by Vasudev Balwant Phadke. इधर आप सारे अलग अलग प्रोविंस के नाम है जहाँ वो लीड करते थे। वो पूरा प्रोविंस बनके एक आजाद भारत की रचना होने वाली थी आगे के समय में, राइट? रेवोल्यूशनरी लाइन दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण ब्रदर्स, वीर सावरकर, बरिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह carried out the torch of nationalism. This was the new breed of nationalistic activity. ये लोग ऐसे थे जो जिसको कोई आवेदन पत्र देना, रिक्वेस्ट करना, रैली निकालना, नारे लगाना, ये लोग इसमें नहीं जानना चाहते थे। ये लोग ऐसे थे जो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे। So that was after 1911-12. Right? Youth trained in making using weapons and constant threat to British government. थोड़े ही समय में इन लोगों ने एक खौफ का माहौल क्रिएट कर दिया गवर्नमेंट के लिए। Right? Fierce revolutionary activities began in India and spread in other countries as well. Not only India, पूरे वर्ल्ड में इसका इको गूंजने लगा और उधर भी ऐसी कई सारी एक्टिविटीज होने लगी। वो दूसरे लेक्चर में देखेंगे। The circumstances of the background was the cancellation of partition of Bengal. बंगाल का पार्टीशन कैंसिल हुआ ना, तो एक जब का एक मोमेंटम आ गया था, एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया था कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे लिए ब्रिटिश कुछ नहीं है, बहुत सह लिया, बहुत डर लिया, अभी डर खत्म। There were two groups, Jahals, radicals, and Mawals, moderates, right, of the Congress in Surat in 1907. And the terrific opposition to practice of Congress was made in this conquest. बहुत कांग्रेसियों को क्रिटिसाइज किया गया कि ये लोग ने आपने लोगों ने क्या लगा रखा है, अब रैली निकालते, जुलूस निकालते, आवेदन पत्र देते, कलेक्टर से मिलते, रिक्वेस्ट करते, ब्रिटिश को बाइसाबी करते हैं जैसे वो चले जाने वाले इधर से। इसको इसकी भाषा में जवाब देना पड़ता है। डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का डिफरेंस हो गया और इसकी वजह से कांग्रेस में स्प्लिटिंग हो गया। एक ग्रुप मॉडरेट बन गया और एक ग्रुप रेडिकल बन गया। है समझ में? Lal, Bal and Pal, the trio adopted a radical ideology which brought the new life in Indian freedom struggle. बराबर है? इन लोग ने एक नया जुनून भर दिया हिंदुस्तान में आजादी के लिए। The lethargic policy of Indian National Congress turned solid. Right? लोग बाल गंगाधर तिलक declared firmly, freedom is my birthright and I shall have it at any cost. आपने हिंदी में भी पढ़ा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं किसी भी हालत में लेके रहूंगा। अभी आप गणपति उत्सव चल रहा है, आप देखते हो, तो उसकी शुरुआत 1904 में बाल गंगाधर तिलक ने करवाई थी। और आप देखते होंगे पूरे हिंदुस्तान में घर घर में गणपति पहुंचे हुए हैं। गणपति उत्सव जिसे बोलते हैं, पहले वो महाराष्ट्र के लिए था। कितना बड़ा भव्य उत्सव होता था, आपको मालूम है, राइट? वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू कराया था। At that time, the group of youth who undertook these activities for struggle of freedom, these extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their lives for the cause of motherland. उसके लिए शहादत बिल्कुल मुट्ठी समान थी।
जीना मरना मात्र देश के लिए था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। They were ready to die. Nothing. Right? They could give up their lives or take away others' life for freedom. जितना वो मरना जानते थे, वो मारना भी जानते थे। ऐसा कुछ। Revolutionary activities spread in Maharashtra, Bengal, Punjab, Orissa, UP, Gujarat, Rajasthan, etc. Among them, activities like छोटे-छोटे संगठन के नाम है मैत्री मेरा सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशासन समिति, अंजुमन मुजाहिदीन वतन, Indian Patriot Association, thus gave more importance to this type of activities. But at first stage, the newspaper like Yuganta, Navshakti, Vande Mataram, Kesari, Maratha, उसमें से केसरी, युगांतर और मराठा, ये जो 3 न्यूज़पेपर थे, वो तिलक एडिट करते थे। उसमें इतने फायर स्पीचेस लिखते थे, वो किसी को भी जुनून हो आज़ादी के लिए, भारत माता के आज़ादी के लिए कोई भी आके अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, ऐसा पैशन बन गया था। He gave constant strength to these activities. About 34 revolutionaries were prosecuted in Alipur massacre, several revolutionaries and Howrah massacre and Dhaka massacre. Attempt to kill Lord Harding by throwing bomb, dropping bomb on Government Viceroy Minto on November 30 outside Raipur Darwaja, creating great excitement in whole India. Pura ho gaya? So, this was the revolutionary activities in brief. Okay, children? So, I hope you enjoyed this lecture. You understood this lecture. In next lecture, we will talk something about other activities. Right? Now it is your time to take your homework out. Homework. Number 1. GR. Bengal was divided. Bengal was divided. Number 2. How, why, and how Muslim League was established. Right? These are the 2 questions. And third, name the fierce revolutionaries of India. Name the fierce revolutionaries of India, जिसके नाम अभी मैंने पढ़े. These are the 3 questions you are supposed to send in homework. So with this, we are ending our lecture number 7 of revision. Now we will proceed something new in lecture number 8. Okay children, till then, meet you in this next lecture. Goodbye.